Okay, so welcome to the second lecture of signals and systems. So in our first lecture, we defined the standard definition of signal and systems. And then we started classification of signals based on different behaviors. So till now we have classified signals in as continuous time signal and discrete time signal. Then we also talk about that signal can be classified based on their periodic nature. So we have periodic signals and non-periodic, or you can also call them aperiodic signals. Then we also mention classification based on randomness. So we can have a random signal and we can have a deterministic signals. And then we introduce the terminology of power and energy. So based on signal power and or based on energy, based on its energy, we can classify signals as power signals or energy signals. So let's continue that discussion. As well as let me also remind you that we also talk about signal transformation. So let me make some concluding remarks about that topic. So signal transformation. So during this course, we will be using a signal representation, and sometime we will be performing some modification on our signal. So we should have a clear understanding of what is going to happen to the signal if some kind of transformation is applied. So we talk about three basic transformations. So हमने डिस्कस किया था टाइम स्केलिंग को हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम. We also talk about time reversal. And we also talk about time shift. So if we have a signal, let's consider a continuous time signal, x of t. So if you apply any of these transformation to this signal, which is represented by this notation, so in time scaling, this signal will be represented like this, x a times t, where this a is some kind of a scaling factor. And then we look into the detail effect of this time scaling behavior, and we found that there are two possibilities if you apply this time scaling operation: compression or expansion. Okay. Then time reversal का effect क्या होगा कि x of t अगर हो तो इसको हम x of minus t की फॉर्म में लिखते हैं. और इसको हमने फिर कहा था कि इसको हमने कहा था कि मिरर इमेज बन जाएगा इससे. Yes. ओके. Excuse me, sir. शिफ्टिंग को अगर हम देखें x of t minus t नॉट, इसको हमने टाइम शिफ्टिंग का नाम दिया. यस, डिले हो सकता, एडवांस हो सकता. कंप्रेशन को हमने कहा था कि अगर हमारे पास इस a की जो वैल्यू है, जब ये ग्रेटर देन 1 होगी तो हमारा सिग्नल कंप्रेस होगा, और ये जो कांस्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड अगर लेस देन 1 होगा तो हमारा सिग्नल एक्सपेंड हो जाएगा. एग्जांपल के तौर पर मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था कि अगर हम a को कंसीडर करें कि 2 है, विच मीन्स के हमारा सिग्नल x ऑफ t था, तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन के बाद वो x ऑफ 2t बन गया है. तो इस सिग्नल और इस सिग्नल में के बिहेवियर में क्या डिफरेंस होगा कि ये जो ओरिजिनल सिग्नल होगा ये आपके पास कंप्रेस हो जाएगा बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया. और कंप्रेशन का मतलब ये है कि सिग्नल की ड्यूरेशन कम हो गई है. और प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने ये दी थी कि एज इफ आपके पास अगर ये ऑडियो सिग्नल है, एक्स ऑफ टी एक ऑडियो सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस ऑडियो सिग्नल को जब आप टाइम स्केलिंग ऑपरेशन अगर अप्लाई कर लें तो लेट्स अज्यूम कि वो टाइम स्केलिंग इस तरह अप्लाई किया कि फैक्टर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो एज इफ के आपका जो ओरिजिनल ऑडियो सिग्नल है उसको आपने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया. ठीक है.
कंप्रेस हो गया। इट मीन्स कि अगर ये ओरिजिनल सिग्नल जो है वो 2 मिनट का एक ऑडियो मैसेज था, तो अब अगर उसको आप प्ले करेंगे तो वो 1 मिनट में ही वो एंड हो जाएगा, क्योंकि वो एज इफ के समवन इज स्पीकिंग क्विकली। ठीक है ना। जो कि आप इवन चेक भी कर सकते हैं, कोई भी ऑडियो प्लेयर में आपके पास सेटिंग होती है कि आप उसमें जो ऑडियो सिग्नल है अगर आप नॉर्मल स्पीड पे नहीं सुनना चाहते तो आप उसको हाई, इस फैक्टर को अगर आप बढ़ा दें तो आपका सिग्नल जो है वो जल्दी जल्दी एज इफ समवन इज स्पीकिंग क्विकली। और अगर ये लेस देन 1 होगा तो एज एन एग्जांपल मैंने लिया था कि लेट्स अज्यूम कि आपके पास सिग्नल ट्रांसफॉर्म हो गया है इस फॉर्म में। तो ओरिजिनल सिग्नल एक्स ऑफ टी है, अब ट्रांसफॉर्मेशन के पास ये 0.5 t की फॉर्म में आ गया एंड इट्स अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया। ए का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है तो सिग्नल हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगेन ये जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन है आपको क्लियर नजर आ रहा है कि तीनों का ताल्लुक टाइम एक्सेस के साथ। ठीक है। तो अगर हम एक सिग्नल को जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो टाइम को हम अलोंग एक्स एक्सिस शो करते हैं। सो वट एवर इज हैपनिंग टू द सिग्नल इट मस्ट बी विद रिस्पेक्ट टू टी। सो इसका मतलब है कि अगर तो ओरिजिनल सिग्नल 2 मिनट का था तो अगर आप उसको 0.5 इट मीन हाफ फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ओरिजिनल सिग्नल नाउ इट विल टेक 4 minutes टू कंप्लीट। सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट के टाइम स्केलिंग में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो हमारा सिग्नल कंप्रेस होगा या हमारा सिग्नल एक्सपेंड होगा डिपेंडिंग अपॉन कि स्केलिंग फैक्टर लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस लास्ट टाइम। ओके, और इसको फिर मैंने जनरलाइज कर दिया था कि ये अलग अलग से शो करने के बजाय अगर मैं इसको इस तरह शो करूं कि ओरिजिनल सिग्नल एक्स ऑफ टी है और ये ट्रांसफॉर्म होके इस तरह। सो इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक टाइम शिफ्ट के साथ है, इसका ताल्लुक अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो इसका ताल्लुक स्केलिंग के साथ है, और अगर इसकी हम एक्चुअल वैल्यू देखें कि क्या ये प्लस है या माइनस है तो उसका ताल्लुक आपके पास किस चीज के साथ है, टाइम रिवर्सल के साथ। ठीक है। सो ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि देयर इज नो टाइम रिवर्सल, और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो टाइम रिवर्सल है। अब ए की जो वैल्यू है अगर 1 से ज्यादा है या कम है तो फिर इसमें टाइम स्केलिंग इफेक्ट भी आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें इसका मतलब है कि ये जो जनरलाइज फॉर्म है मेरे पास, इसमें आपके पास सारी पॉसिबल हो सकती हैं। एज एन एग्जांपल मैं कर लूँ कि एक्स ऑफ टी है एंड लेट्स अज्यूम कि मेरा सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन के पास इस तरह का हो गया -2t+5। सो इसमें आपको नजर आ रहा है कि शिफ्टिंग भी है, इसका मतलब है कि रिवर्सल भी है, और इसका मतलब है कि स्केलिंग भी। सो वंस यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि टाइम शिफ्ट से क्या हो सकता है, स्केलिंग से क्या हो सकता है, रिवर्सल से क्या हो सकता है, तो कोई भी गिवन सिग्नल अगर आपको ग्राफिकली गिवन हो और आपको कहा जाए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे तो ग्राफिकली सिग्नल किस तरह नजर आएगा, सो यू शुड बी एबल टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट द सिग्नल। ओके। और उसके बाद मैंने कहा था कि ये जो 3 ऑपरेशन है ये स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह अप्लाई करेंगे। तो जस्ट एक आप कह सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि ये तीनों चीजें आप एक साथ तो नहीं अप्लाई करेंगे ना, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है। सो अगर मैं इसको सिस्टमेटिक करूंगा तो पहले मैं क्या करूंगा कि पहले मैं एक्स ऑफ t+5 को प्लॉट कर लूंगा। ठीक है। पहले स्टेप में मैंने कौन सा सिग्नल प्लॉट किया, एक्स ऑफ टी मुझे गिवन है और जो डिजायर्ड और रिक्वायर्ड सिग्नल है वो ये है, और इसमें जो सबसे पहला ऑपरेशन मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो कौन सा अप्लाई कर रहा हूँ, शिफ्ट एप्लीकेशन। तो शिफ्ट के हिसाब से मेरे पास क्या है कि एक्स ऑफ t+5 है। वंस ये सिग्नल अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दूं, फिर मेरे पास चॉइसेस हैं कि अब सिस्टमेटिक तरीका मैं बात कर रहा हूँ तो पहले आप इसके ऊपर टाइम स्केलिंग ऑपरेशन अप्लाई कर दें। इस सिग्नल से फिर आप कौन सा सिग्नल बना लें, 2t+5। ठीक हो गया। तो मैंने अब कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, स्केलिंग ऑपरेशन भी मैंने कंसीडर कर लिया। और फिर थर्ड स्टेप में आप इस पे जो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है -2t+5। सो अगर आपको ये तीनों ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने हैं, दिस इज व्हाट यू कैन से सिस्टमेटिक तरीका है कि पहले
शिफ्ट अप्लाई करें, फिर स्केलिंग ऑपरेशन अप्लाई करें और फाइनल आप फिर टाइम रिवर्सल। ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने किए हैं सब टाइम एक्सिस के हिसाब से किए हैं, ठीक है। सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम हमारा कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी कि हम सिग्नल के एम्पलीट्यूड वाइज ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। सो अगर हम कहें कि एम्पलीट्यूड स्केलिंग का क्या मतलब होगा, एम्पलीट्यूड स्केलिंग इट मींस के एक्स ऑफ टी, इसके ऊपर अगर हम एम्पलीट्यूड स्केलिंग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो इट मींस ये सिग्नल किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेट्स से के टाइम्स एक्स ऑफ टी। तो ये जो के है आपके पास, ये आपके पास स्केलिंग फैक्टर। सो इट ऑल डिपेंड्स कि कांस्टेंट के की वैल्यू क्या है। अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि हमारा सिग्नल क्या हो जाएगा, एम्पलीफिकेशन ऑफ द सिग्नल, ओके। और अगर के का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 हो तो फिर क्या एटेन्यूएशन हो जाएगी, या जिसको आप रिडक्शन कहते हैं, ठीक। सो इसका ताल्लुक, इस ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक एम्पलीट्यूड के साथ है, इट हैज नथिंग टू डू विद टाइम। सिमिलरली वी कैन आल्सो हैव अनदर ट्रांसफॉर्मेशन जिसको मैं कह सकता हूँ एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग कह सकता हूँ। मींस एक्स ऑफ टी प्लस सम कांस्टेंट, ओके। अब इसमें पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, बट इन अदर वर्ड्स जिस तरह इसको आपने को डिफाइन किया है कि एक्चुअली सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा, सिग्नल रिड्यूस हो जाएगा या सिग्नल एटेन्यूएट हो जाएगा, इस के का क्या फर्क पड़ेगा। ओके तो मैं इसको अगर केस वाइज करूं, अगर मैं कहूं कि के जो है ग्रेटर देन 0 है, विच मीन्स कि राइट के साइड बढ़ जाएगा पॉजिटिव ये। है, और दूसरा केस ये हो सकता है कि के लेस देन 0 है, विच मीन्स कि के नेगेटिव है। इसका क्या इफेक्ट होगा और इसका क्या, इसको मैं कहूंगा कि क्या हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट। डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यस, correct. Okay, so these are some of the transformation with respect to amplitude that you can also consider. अब जो हमने सिग्नल की क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे थे, continuous time signal, discrete time signal, periodic signal, aperiodic signal, random signal, deterministic signal, power signal and energy signal, उसमें एक और कैटेगरी का मैं एडिशन करना चाहता हूँ। हम एक टर्म यूज करते हैं कि हमारा जो सिग्नल है वो इवन सिग्नल है, या हम कहते हैं कि हमारा सिग्नल ऑड सिग्नल है। उस सिग्नल का अगर हम टाइम रिवर्स सिग्नल लें और दोनों इक्वल आ जाएं तो हम कहेंगे कि ये हमारा सिग्नल इवन सिग्नल। और अगर हम ऑड सिग्नल की बात करें, अगर हम गिवन सिग्नल का पहले टाइम रिवर्स वर्जन लें और उसके साथ जब माइनस मल्टीप्लाई करें तब जाके ये दोनों सिग्नल बराबर हो तो हम कहेंगे कि हमारा सिग्नल ऑड सिग्नल। सो दिस इज हाउ यू have another way of classifying signals as odd signal or even signal. Okay. And later on इस property को फिर हम use भी करेंगे, जब हमें ये पता चल जाए कि ये सिग्नल even signal है तो we can mathematically represent कि इसका मतलब ये है, और अगर हमें कहा जाए कि सिग्नल odd है we must know कि हम इस condition की बात कर रहे हैं। But there is another concept जो हम use करते हैं कि any, अगेन यहाँ पे एक और चीज जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताई थी कि इस पूरे कोर्स में जब हम किसी भी सिग्नल की बात कर रहे होंगे तो दो सिग्नल कैटेगरीज को हमने कंसीडर करना है, डिस्क्रीट टाइम को भी करना है और कंटिन्यूअस टाइम को भी करना है। तो इस वक्त जो मैंने ऑड सिग्नल और इवन सिग्नल की बात की तो मैंने इसे कंज्यूम किया कि मेरा सिग्नल जो है वो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, कॉन्टिन्यूस। ठीक है। लेकिन इट मीन्स कि जो डेफिनेशन है ये इक्वली एप्लीकेबल है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए भी। इसका मतलब ये है कि अगर एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो और वो इवन सिग्नल हो, it will also fulfill the same criteria कि x of n must be equal to x of minus n and x of n will be equal to minus x of minus n if it is an odd signal. So keep this thing in mind कि sometimes मैं एक continuous एक example दे रहा हूँ but that you should always think कि ये condition discrete time के लिए भी equally applicable है। Okay, second thing जो मैं mention करना चाह रहा था कि any given signal,
can be represented as sum of even signal and odd signal. सो इट मीन्स के अगर एक सिग्नल हो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं as if it has two parts or it has two components such that one component will be odd and other component will be even. So it means उसको मैथमेटिकली हम क्या किस तरह लिख सकते हैं? So अगर हमारे पास कंटिन्यूअस टाइम की एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि अगर एक गिवन सिग्नल है x of t, इसको मैं लिख सकता हूं as if it has two parts. One is even part, so there is some signal जिसको हम कहेंगे कि ये even x of t है, and then there is another component जिसको हम कहेंगे कि this is some kind of a signal that is odd signal. Now what is ये even component किसके बराबर होगा और ये odd component किसके बराबर होगा? ठीक है, so मैथमेटिकली अगर मेरे पास किसी भी सिग्नल का मैंने इवन कंपोनेंट फाइंड करना, जिसको मैं एब्रिवेटेड फॉर्म में ई वी लिख रहा हूँ, व्हाट यू कैन डू कि गिवन सिग्नल एक्स ऑफ टी को आप लें, इसके साथ आप इसका टाइम रिवर्स वर्जन ऐड कर दें और इन समेशन को 1/2 से डिवाइड कर दें. ये जो सिग्नल है आपके पास, दिस वन, this will always be some kind of an even signal. ठीक हो? Similarly, अगर मैंने किसी भी सिग्नल का ऑड कंपोनेंट फाइंड करना है, जिसको मैं एब्रिवेटेड फॉर्म में इस तरह लिख रहा हूँ, ऑड पार्ट कैसे आप फाइंड करेंगे किसी भी सिग्नल का? गिवन सिग्नल को आप क्या करें, इसके माइनस और फिर एक्स ऑफ माइनस टी जो कि टाइम रिवर्स पार्ट है, इसको आप 1/2 फैक्टर से डिवाइड कर लें. तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है कि किसी भी सिग्नल, अगेन जिस तरह मैंने कहा था कि ये दोनों के लिए वैलिड है, एक्स ऑफ टी हो या एक्स ऑफ एन हो, दोनों के लिए इक्वली वैलिड है. सो इवन पार्ट अगर आपने फाइंड करना है, यू कैन मेक यूज ऑफ दिस इक्वेशन, और अगर आपने किसी भी सिग्नल का ऑड कंपोनेंट फाइंड करना है, दैट विल बी इक्वल टू दिस. Okay, so with this knowledge, let's move on to जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक टॉपिक का मेंशन किया था कि हम कुछ बेसिक सिग्नल्स को डिस्कस करेंगे इस कोर्स में. एंड what is the significance of basic signals? बेसिक सिग्नल्स को डिस्कस करके हम एक तो अपना ग्रेजुअली जो नॉलेज है सिग्नल के बारे में कि किसी भी सिग्नल को मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके वो फिर ग्राफिकल किस तरह उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी है. एंड एट द सेम टाइम वी विल फाइंड आउट कि ये जो बेसिक सिग्नल जो हम पढ़ेंगे, ये सिग्नल फिर लेटर ऑन हमें हेल्प करेंगे कि अगर हमने कोई भी सिग्नल जो कि बेसिक सिग्नल नहीं होगा, एक रियल वर्ल्ड सिग्नल होगा, एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सिग्नल होगा, उस सिग्नल को भी हम बेसिक सिग्नल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इन बेसिक सिग्नल को आप कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर भी हम एज्यूम करेंगे. ठीक है, बेसिक सिग्नल्स को हम किस फॉर्म में यूज करेंगे? हम अज्यूम करेंगे कि एज इफ कि ये हमारे पास कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे और इन बिल्डिंग ब्लॉक्स की मदद से फिर हम कोई भी सिग्नल कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे. ओके, सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड बेसिक सिग्नल. सो पहला जो हम बेसिक सिग्नल पढ़ेंगे, लेट्स अज्यूम कि पहले मैं इस पहले जो सिग्नल है उसको पहले कंटिन्यूअस टाइम में देख लेते हैं.
हमारे पास कंटिन्यूअस टाइम में एक सिग्नल है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये जो हमें ये टर्म यूज करेंगे कंटिन्यूअस टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स, ये किस किस्म के सिग्नल्स हैं और फर्दर इसकी बिहेवियर क्या हो सकता है टाइम के हिसाब से। सो मैथमेटिकली हम इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे आई एम यूजिंग द सेम नोटेशन जो कि टेक्स्ट बुक में है, सो दैट यू पीपल आर नॉट कंफ्यूज्ड। अदरवाइज इस सी की जगह आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, ए बी, बिकॉज दिस इज सम काइंड ऑफ अ कांस्टेंट। तो इसको क्योंकि मैं बुक के हिसाब से फॉलो कर रहा हूँ, तो आई एम यूजिंग द सेम नोटेशन। सो सम कांस्टेंट सी, then this exponential signal e raised to the power some constant जिसको हम a से रिप्रेजेंट कर लेते हैं into t। तो ये जो मैथमेटिकली मैंने सिग्नल आपके सामने लिखा हुआ है, this is what we call as continuous time complex exponential signal। now generally ये जो मैंने कांस्टेंट यूज किए हुए हैं c and a are complex। सो अगेन जब भी मैं कॉम्प्लेक्स का वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि आई एम सेइंग कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके। बट वी विल फाइंड आउट कि अगर ये सिग्नल सॉरी ये जो कांस्टेंट सी और ए है जनरली तो ये कॉम्प्लेक्स होंगे, उस केस को भी हम देखेंगे। बट वी विल आल्सो कंसीडर कि अगर ये जनरली तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये रियल है, तो इसके सिग्नल की बिहेवियर पे क्या कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस इस सिग्नल को हम डिफरेंट केसेस में डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक सिग्नल है जिसको मैं नाम दे रहा हूं कि ये रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल, रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। और एज इट्स ऑब्वियस कि जब मैं कह रहा हूं कि ये रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स है, इट मींस कि मैं एक्चुअली किस चीज की बात कर रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो सी है और ये जो ए है, दे आर बोथ रियल नंबर्स। सो दिस इज फर्स्ट केस जो हम डिस्कस करने लगे। सो अब जब मैं इसको मैथमेटिकली अगर मैंने ये सिग्नल इस तरह लिखा हुआ है कि x ऑफ t इज इक्वल टू c इज टू पावर a t, इट मींस कि अगर तो ये रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल, इट मींस कि ये जो c है ये भी कोई रियल नंबर है। वी आर नॉट गोइंग टू द स्पेसिफिक नंबर कि ये c की वैल्यू क्या है, a है, इसकी वैल्यू 1 है, 2 है, 1.2 है, 3.1 है, -1.1 है। इट कैन बी एनी नंबर बट इट मस्ट बी रियल नंबर। और ये जो कांस्टेंट a है इसके बारे भी हम इसको भी हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ये जो ए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये भी कोई ना कोई रियल नंबर है। सो बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन अब इसका बिहेवियर क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। देयर आर, अब इस सिग्नल को हम देख लेते हैं, दो बिहेवियर्स हो सकते हैं इस रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स के। इफेक्टिवली तीन हो सकते हैं, वो हम देख लेते हैं, थर्ड केस भी देख लेते हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट इसके बिहेवियर्स हो सकते हैं। और वो दो बिहेवियर किस बेस के ऊपर होंगे वो मैं लिख लेता हूं कि अगर तो जो कांस्टेंट ए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, अगर तो ये पॉजिटिव हो, देन लेट मी पुट अ क्वेश्चन मार्क हो रहा है। और दूसरा केस मैं कंसीडर कर रहा हूं कि अगर ए आपके पास नेगेटिव हो, देन अगेन क्वेश्चन मार्क। सो एक्सपोनेंशियल
राइज, या इसको आप एक्सपोनेंशियली ग्रो भी कह सकते हैं, डीके या reduce. This is the what you can say a correct or वो डेफिनेशन या वो लैंग्वेज जो कि हम सिग्नल सिस्टम में यूज करते हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन रेज टू द पावर पॉजिटिव नंबर हो तो हमारा सिग्नल एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा या राइज करेगा, और अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के वो जो रेज टू द पावर ए हो नेगेटिव नंबर हो तो हमारा सिग्नल एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा होगा। अब इसको मैं ग्राफिकली भी शो कर लेता हूँ सो दैट यू गेट अ बेटर आइडिया। सो अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास टी है, बिकॉज इस वक्त हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की बात कर रहे हैं, और हमारे पास अलोंग एक्स वाई एक्सिस हमने सिग्नल को प्लॉट करना है। ठीक है, सो पहला केस जो है जिसमें ए पॉजिटिव है, इसमें सिग्नल का बिहेवियर इस तरह का होगा। सो इस केस में हमारे पास क्या है कि ए जो है वो पॉजिटिव, और ये हमारे पास वो केस है जिसमें ए जो है वो नेगेटिव नंबर है, इट मींस ए इज लेस देन 0। सो दिस इज, इसको हम कह रहे थे कि ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, राइज कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, और ये जो है एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ये जो जहां पे t इक्वल टू 0 है ये आपके पास c, so y intercept is the, so c will determine what is the y intercept. Okay, so let's continue this discussion in the next session because 40 minutes are almost over.